کل صبح 7 بجے لندن سے میں واپس اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا اور مجھے تو خدشہ تھا کہ شاید وہ کام مجھے گرفتار کر لیں گے، کیونکہ میں جب واپس یہاں سے جا رہا تھا تو ٹرانزٹ میں ہی انہوں نے میرے خلاف FIR کر دیا تھا، اور ڈی خان میں اس دفعہ کوئی ایک شخص ہے جو 3 مہینے پہلے اٹھایا گیا ہے، کوئی ڈرگ ایڈکٹ بھی معلوم ہوا ہے، اور اس نے جو الزامات لگائے ہیں بڑی چابکدستی کے ساتھ RPO ڈی خان نے اس پہ عمل درآمد کیا ہے۔ مجھے کچھ اندازہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی شخصیت کے ایما پہ یہ FIR درج ہوئی ہے، اور اگر یہ چیز کنفرم ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ جو شخص ہے سیاسی، اس کے ساتھ میرا حساب کتاب رہے گا۔ یہ FIR بھی اونچے ہتھکنڈے ہیں، اور انشاءاللہ اس FIR کو بھی فیس کریں گے۔ اگر کوئی اور بھی ان کی خواہش ہے تو پوری کریں، ہم ہر FIR کو فیس کریں گے، ہر ظلم کو فیس کرتے آئے ہیں۔ لندن کا جو وزٹ تھا، کچھ میرے اپنے فیملی سے ملنا تھا، لیکن 1-2 چھوٹے چھوٹے کام تھے، شاید پارٹی کے ہی سمجھ لیں، اور اس کے علاوہ جب وہاں پہ پہنچا تو پاکستان تحریک انصاف UK کی جو آرگنائزیشن ہے، جو پریزیڈنٹ ہیں عمران خلیل صاحب، انہوں نے اور عامر خان صاحب نے اور آصف بٹ صاحب نے، جتنے بھی ذمہ داران ہیں، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ہمیں UK میں کنونشن کرنے چاہیے۔ تو ہم نے کوئی 7 کنونشن کیے مختلف شہروں میں، جس میں ناٹنگم، لندن میں 3 ہوئے، مانچسٹر میں، شیفیلڈ میں، اور ورکرز بھاری تعداد میں آئے۔ لاسٹ ہم نے جلسہ کیا لندن میں، الفرڈ میں، اور ان کنونشن کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ جو خان صاحب کا میسج تھا اوورسیز کے لیے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز الیکشن سے 1 مہینہ پہلے پاکستان آ جائیں ہزاروں کی تعداد، تاکہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو، کیونکہ وقت مشکل ہیں، تو وہ ہمیں سپورٹ کر سکے، ہاتھ بٹا سکے، جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ہیلپ کر سکے۔ ساتھ میں یہ پیغام بھی تھا خان صاحب کی طرف سے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ جو ان کی کوششیں ہیں ان کو تھوڑا سا صحیح ڈائریکشن ملے۔ اوورسیز پاکستانیز نے جو ہیں کنونشن میں اور ملاقاتوں میں خان کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا۔ جو ولولہ جذبہ اوورسیز پاکستانیز میں نے پایا، شاید وہ پاکستانیوں سے بھی ایک قدم آگے ہیں خان کی محبت میں، پاکستان میں رول آف لا کی ریسٹوریشن میں، اور بہت ہی زیادہ مایوسی بھی تھی لوگوں میں کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے، اور عوام کے ساتھ، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کی گرفتاری پہ پورا UK جو ہیں وہ پریشان ہیں، غم میں ہیں اور غصے میں ہیں، اور سب لوگ جو ہیں خان صاحب کے لیے دعائیں بھی دے رہے تھے اور خان صاحب کو سلام بھی بھیج رہے تھے۔ اوورسیز کے ساتھ کنونشن میں ہم نے کم از کم ایٹ لیسٹ ایک مائنڈ ان کا بنا لیا ہے کہ اوورسیز اب بھاری تعداد میں جو ہیں پاکستان آئیں گے الیکشن سے 1 مہینہ قبل، اور یہاں پہ جن علاقوں سے ہیں اوپینین لیڈرز ہیں، پھر باوسائل ہیں، جہاں پہ کسی امیدوار کو پینافلیکس کی ضرورت ہے، چاکنگ کی ضرورت ہے، وہ اس میں بھی ہیلپ کریں گے، اور سب نے بڑا تہیہ کیا ہے، یقین دہانی کرائی ہے، اور خان کا پیغام جو ہے انہوں نے اس کو بطور ڈائریکشن لیا ہے۔ میں اوورسیز پاکستانیز بالخصوص UK کے جو چیپٹر ہیں PTI کا، ان لوگوں نے جس طریقے سے یہ پروگرام خوش اسلوبی سے، اور پھر جو رسپیکٹ دی مجھے ہر جگہ پہ ورکرز نے دی، پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے چاہنے والوں نے دی، وہ میرے لیے ایک انمول سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے تمام اوورسیز پاکستانیز کا شکر گزار ہوں۔ آج میں آیا ہوں اسی FIR میں ضمانت کرانے، اور انشاءاللہ جو ہیں خان صاحب سے میری کل ملاقات ہے، آج ہونی تھی، لیکن آج جو ہے جیل حکام نے کہا کہ یہ ملاقات کل پہ لے جائیں، تو انشاءاللہ کل ان سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات کے بعد جو ہیں میرا کل ارادہ ہے، کیونکہ میں نے بہت ہی ضروری عوامل یا امور خان صاحب کے نوٹس میں دینے ہیں، جس کے بعد میڈیا سے یا میں ویلاگ کے ذریعے بات کروں گا یا پھر پریس کانفرنس کروں گا۔ جب آپ لندن سے روانہ ہو رہے تھے تو ایک ویل چیئر پہ بوڑھی خاتون نے آپ سے وعدہ لیا کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وعدہ کریں، وہ والی کیا سٹوری تھی؟ ایسی بہت ساری سٹوریاں ہوئی،
बहुत सारे लोग, बूढ़े बूढ़े मर्द, ख़वातीन, नौजवान, बच्चे बच्चियाँ, सब जो हैं वो आए, हर एक खान के साथ अपनी बेपनाह मोहब्बत का इज़हार अपने अंदाज में कर रहा था। खातून जो थी वो कह रही थी कि मैं 20 साल से खान के लिए दुआएं कर रहा हूँ, और वो मुझसे ये वादा लेना चाहती थी, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों पे जो है एतमाद पाकिस्तानियों का ज़ायल होता जा रहा है। जिस तरीके से लोग खान को छोड़ते जा रहे हैं, तो लोग इन कोशिशों से ये चाहते हैं कि जो उनके साथी हैं वो खान के साथ आने वाले वक्त में भी डटे रहे। अच्छा शहजाद मरवत साहब, आपने कन्वेंशन और जलसों की बात की, आपने वहाँ पे इनेकाद हुआ और काफ़ी वहाँ पे लोगों का जोश व खरोश था। पाकिस्तान में आपने ऐलान किया हुआ कि आपने कन्वेंशन करवाने और आपने अटेंड करने, कब स्टार्ट करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह यही जो हैं मैटर्स हैं जो खान साहब से कल डिस्कस होने के बाद, कल रात मेरी अली अमीन खान के साथ 2 से 3 घंटे टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई, यही कन्वेंशन की इशूज़ पे। उनसे फीडबैक लेके खान साहब के सामने रखूँगा। खान साहब की हिदायत के बाद हम बिल्कुल हफ्ते के अंदर जो है कन्वेंशन के इनेकाद के लिए जा रहे हैं। अच्छा मरवत साहब, वो लंदन से दवाई वाला भी आ गया है, आप भी लंदन से आ गए, तो इमरान खान साहब कब आ रहे हैं? जी, लंदन से दवाई वाला मेरा ख्याल है कि लाया गया है, और उसने खुद तो नहीं आना था, और पुश्ते मुश्ते कलेक्ट करके उसने फिर वापस जाना है, क्योंकि हमें अभी तक अंदेशे हैं कि उन्होंने इलेक्शन न करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। खान साहब के खदशात हैं, सदर आरिफ अलवी भी इन खदशात का इज़हार कर चुके हैं। गरचे तारीख़ पे इत्तेफाक हो गया है और हम इसको खुशाइन करार दे रहे हैं, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि इलेक्शन हो भी जाएँ और फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इस हवाले से आपके तवज्जुह से ये भी बता दें कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए तमाम इंटरनेशनल मीडिया को हम दावत दें। तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका काम इलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना है, उनके रिपोर्टर्स को मंगवाए हैं। यूरोपियन यूनियन और जो इंटरनेशनल और अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऐसे मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में जमहूरी अक़दार की प्रमोशन के लिए इनके झेली बॉडीज़ हैं, उनको दावत देंगे, और इस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी लगी हुई है। सर, आप क्या समझते हैं कि राजा रियाज तकरीबन तमाम पॉलिटिशियन से बाजी ले गए हैं कि उन्होंने इलेक्शंस की डेट का ऐलान कई माह पहले कर दिया था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक बेजानी सी कैफियत है कि इलेक्शंस आया होंगे या नहीं? राजा रियाज कौन है? अपोजिशन लीडर साहब का, वो जो पीटीआई छोड़ गया था। अच्छा, वो जो कहते हैं जो पहचानते भी नहीं है, वो जो कहते हैं पहचानते नहीं है। किसी बंदे की बात करो, उसका कोई सवाल बनेगा? मतलब है वो अपोजिशन लीडर था, किधर है आजकल वो? फैसलाबाद में यार वो नून का था और हमसे ये हुआ था, तो लिहाजा कोई हम ऐसे बंदे की बात करो जिससे कुछ आवाम को फ़ायदा हो। अच्छा, ये बताएंगे अभी जैसे इलेक्शन अनाउंस हुए, आपकी क़यादत फिर गिरफ्तार होना शुरू हो गई है, 3-4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और प्लान है कि आपके उम्मीदवार भी उठाए जाएँ, फिर क्या लाहेमल होगा? जिस तरह मेरे भाई पंजोता साहब ने आपको बताया, ये जो कन्वेंशन का इनेकाद है ये पहली कड़ी है हमारे बाहर निकलने की। हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, कोई मजाक नहीं है कि हर वक्त आप हमें मारें, हर वक्त आप हमारे लोगों को उठाएं। अब ये सिलसिला थम जाना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये बड़ी बड़ी अदालतों में जो मुंसिफ बैठे हुए हैं, इनको भी जो हैं ये नज़र आना चाहिए कि पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। अगर ये हमारे वर्कर्स पे या लीडर्स पे या कैंडिडेट्स पे कोई क्रैक डाउन करते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ने देते हैं, तो हमने मुतबादिल प्लान बनाए हुए हैं। जब इलेक्शन आएंगे, इससे बहुत पहले कि हम आवाम के पास होंगे, आवाम के सामने होंगे, हमारे जलसे भी होंगे, हमारी कैंपेन भी होंगी, और हम ये इंश्योर करेंगे आवाम की ताकत के बलबूते पर। मरूफ साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर भी इस वक्त जुल्म की एक दास्तान सामने आई है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की सूरत में। तो जुल्म तो फिर दोनों जमातों पर हो रहा है। जी, फवाद चौधरी साहब का तो मैंने ये सुना है कि वो मगो की हालत में है, उसकी वो जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म कराने के लिए गिरफ्तार किया गया। अच्छा मरवत साहब, आपके जो साथी वकील हैं प्रेसिडेंट गौर साहब, वो ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, क्या आप भी इलेक्शन लड़ेंगे इस मरतबा? जी, मैंने तो पहले भी कई दफ़ा कहा हुआ है, आज फिर कह देता हूँ कि हम तो खान साहब के वो आबरू की
जुम्बश की तरफ देखेंगे। क्या वो हुक्म फरमाते हैं हम हाजिर हैं, अगर वो चाहते हैं आप इलेक्शन लड़ें, इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। कल मानसेरा में जलसा था लेकिन वो भी पुलिस ने नहीं होने दी, उसके वाले से क्या कहेंगे? ये केपी के लोगों से मेरी ये सवाल बड़ा अच्छा है। मानसेरा में जलसा था, सोफे उठा के ले गए, सारे शहर के एंट्री पॉइंट्स पे पुलिस के नाके थे। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, मेरी ये गुजारिश सुन लो, ये 400, 500 या 1000 की तादाद में जमा होंगे तो आपका यही असर होगा। जिस ज़िले में जाएंगे इंशाल्लाह, सबसे पहले तो इंशाल्लाह पश्तो में हम या उर्दू में जो भी खिता होगा वहाँ पे हम उनको पैगाम देंगे। हम आपके मेहमान बन के आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मेहमान जो हैं वो वहाँ पे पुलिस के हाथों रुस्वा या जलील हो, आप 10-10 लाख आबादी छोटे छोटे अजला की है, उसमें 20-30 हज़ार जमा होना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सब ने जो है ये सोच के निकलना है कि लाठी भी पड़ सकती है, टीयर गैस भी हो सकती है, फायरिंग भी हो सकती है, लेकिन अब ये वक्त है कि हमने डट जाना है। हमने अपने हकूक़ जो कानून हमें देता है, पेशावर हाई कोर्ट ने आर्डर किया हुआ है, इसके बावजूद अब आईजी केपी के ख़िलाफ़ जो है कंटेम्प्ट की पटिशन आज दायर हो जाएगी और इंशाल्लाह जो भी सरकारी अफसरान अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे या वो अपने वर्दी को या अपने ज़ोर या ताकत को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, वो ये सब सुन लें कि आइंदा हम 500 और 1000 की तादाद में नहीं आएंगे। अनकरीब एक बात और बता दूं, बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही है। 2-3 दिन के अंदर एक बड़ी शख्सियत जो है यहाँ इस्लामाबाद में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, 2-3 हमने उनको जलसे दे दिए जो नए लोग आ रहे हैं और बड़े ही वेल नोन पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तानी सियासत में उनका, और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में उनकी बड़ी कदर मंजिलत है। तो लिहाजा अब आप लोग देखेंगे आने वाले दिनों में जोक दर जोक लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी होंगे और प्रोग्राम भी करेंगे। और अगर इस तरह ये जो मानसेरा में हुआ है, अब जब हम जिस कन्वेंशन में जाएंगे हमारी जिम्मेदारी उन लोगों की है। अगर जहाँ पे अफरीदी रहते हैं, खटक रहते हैं, मरवत रहते हैं, बलोच रहते हैं या बेठानी या बनोची रहते हैं, शिनवारी रहते हैं, हम उनकी जिम्मेदारी है। फिर वो जो है वो कौम हमें छोड़ दें किसी के आसरे पे, और या फिर सब ने हमारे साथ मिल के बैठना है। कन्वेंशन हम अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में करेंगे, न कोई हम रोड ब्लॉक करेंगे, न कोई हम गिराव जलाव करेंगे। तो लिहाजा प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में हमें बैठना, अगर इस पे किसी का मूड ख़राब होता है और मूड ख़राब होगा उसी शख्स का जिसने मुझ पे पर्चा कराया है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी तस्दीक होने के बाद इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूं, अफनानुल्लाह पे पर्चा हो गया है। आईजी इस्लामाबाद जिसने पर्चा किया है सब पे मैंने खुद जो है जवाबी कार्रवाई की है और इस पर्चे कराने वालों पे भी करूँगा और जो भी शख्सियत होगा, क्योंकि ये किसी का हक नहीं है कि जहाँ पे बैठ के आप 2 लकीरें पर्चे के लिख दें और फिर तकालीफ बना दें। इंशाल्लाह ये पर्चा और ये तमाम पर्चे जिन्होंने दर्ज किए हैं सबको मैं दावत देता हूँ कि अब इनको साबित भी करो। नहीं साबित करोगे तो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत मैं हर एक केस के अर्जाने वसूल करूँ। अच्छा सर, बताइएगा कि रात को एक बड़ी स्टेटमेंट आई है जो कि परवेज़ खटक की जानिब से आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन में अगर हिम्मत है ना तो मेरे हल्के में आके इलेक्शन लड़ के दिखाएं। उसके हल्के में मैं इलेक्शन लड़ूंगा और वो हारेगा। वहाँ पे देखें, ये इस तरह के चैलेंजेस मुनासिब बात नहीं है। वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 8 फरवरी को आने दें, इंशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके सामने आश्कार होंगे। आगे कोई सवाल? केपी से कन्वेंशन आप खुद लीड करोगे? जी इंशाल्लाह तमाम कन्वेंशन में खुद लीड करना चाहता हूँ। खान की यही डायरेक्शन है और अली अमीन खान के साथ बात हुई, थोड़ा सा मॉडस ऑपरेंडी जो है हमने डिटरमिन करना है और इसके बाद जो है सिर्फ मैं नहीं हूँगा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत भी मेरे साथ होगी, MNA सेनेटर या MPs जो कि बाहर हैं और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए।